Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of share-based payment, which is given in CMA final paper number 17, study note number 6. So today we will solve illustration number 7. Z Limited grants 100 share option to each of its 400 employees, conditional on their continuing in service for 3 years. Okay, so here we are getting information about number of shares. See, शेयर ऑप्शन बोला है, यानी कि ये नंबर ऑफ शेयर्स है 400 एम्प्लॉयज. सो दीज आर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड दिस इज द वेस्टिंग पीरियड, दैट इज 3 years. ओके, the fair value of a share option on a grant date is 30. So fair value is also given, that is rupees 30. Z Limited estimates that the 20% employees will leave during the 3 years period and therefore forfeit their rights to the share option. Okay, so this is just a estimation that 20% employees will leave during 3 years period, but actual data is given here. So for year 1, year 2 and year 3. okay, so इधर जस्ट बोला है कि 20% एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो नीचे दिया है. ओके, ड्यूरिंग ईयर 1 that is 18 employees leave. Okay, the entity revise its estimate of total employee departure over 3 years period from 20% to 16%. ओके, सो एक्चुअल में क्या हुआ, ईयर 1 में 18 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, लेकिन एस्टिमेशन क्या है कि टोटल 3 years के पीरियड में कितना छोड़ के जाएंगे ऐसे लग रहा है. एस्टिमेशन 20% to 16%. ओके, so we have to consider minimum percentage, so we'll consider this 16%. During 2 year, that is during second year, a further 20 employees leave. Okay, the entity revised the estimated of a total employees departure over 3 years period from 16% to 13%. so second year में ऐसा estimation है कि 13% एम्प्लॉई छोड़ के जाएंगे. ठीक है, ड्यूरिंग ईयर 3 फर्दर 14 एम्प्लॉयज़ लीव. ठीक है. ओके, सो ये जो क्वेश्चन है इधर तक, ओके, इधर से लेके इधर तक, ये ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व किया है. सी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हम लोग ने ये लास्ट पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर और मतलब क्वेश्चन आंसर ऐसा फॉर्मेट है, तो उसमें जो लास्ट का टेबल है वो शायद ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने किया है. ओके, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब आपको ये रिवाइज हो जाएगा. सो इधर तक का क्वेश्चन सेम है, उसके बाद जो जर्नल एंट्री करना है वो हम लोग को थोड़ा अलग है. ओके, so we have to prepare table first of all to get this remuneration expenses recognized in each year. मतलब हर एक ईयर का जो भी एक्सपेंस हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ना, वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके. ओके, so first of all we'll prepare that table. We have to remember the formula. See, number of employees multiplied by number of shares multiplied by fair value multiplied by that expire period divided by total vesting period. So we have to remember that formula, and by using that formula we'll prepare a table. Okay, चलो हम लोग टेबल प्रिपेयर करेंगे. सी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड. ओके, ये टेबल के यूज़ से ही हम लोग जो भी जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है वो करेंगे. सी, इधर तक वो इन्फॉर्मेशन है वो टेबल के लिए. नेक्स्ट बोला है ऑल द कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयज़ एक्सरसाइज द ऑप्शन टू सब्सक्राइब द इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 50 ओनली. ओके, सो इधर हम लोग को ये जो दिया होता है वो तो फेयर वैल्यू होता है. ओके, लेकिन जो एक्सरसाइज प्राइस कितना बोला है, सी, एम्प्लॉयज़ एक्सरसाइज द ऑप्शन एट 50 ओनली, ये जो है वो फेस वैल्यू है और ये जो है वो एक्सरसाइज प्राइस है. Okay, so we have to pass the journal entries according to this 50 when the market price stands is 80. Okay, so market price was 80, exercise price is 50 and face value is 10 and fair value is 30. Okay, don't confuse in these values. Okay, the fair value of the option granted date is taken at 30 only. Again fair value is given, that is 30, so there is no change in fair value. Pass the journal entries with the working notes. Okay, so ultimately we have to pass the journal entries. For passing journal entries we have to prepare this table so that we'll get the employees expenses. Okay, so first of all हम लोग ये टेबल प्रिपेयर करेंगे. so first of all number of employees हम लोग को कितना बोला है. see, 400 number of employees. okay, number of employees multiplied by number of shares it is 100. see,
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 400, नंबर ऑफ शेयर्स 100, उसके बाद फेयर वैल्यू इज़ 30, सो मल्टीप्लाइड बाय 30. आफ्टर दैट हम लोग को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि कितने एम्प्लॉय छोड़ के जाने वाले हैं. सी हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में ऑल एस्टिमेटेड वैल्यूज़ लेते हैं. सेकेंड ईयर में जाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर का एक्चुअल और नेक्स्ट 2 ईयर्स का एस्टिमेटेड, और थर्ड ईयर में ऑल एक्चुअल लेते हैं. ओके, सो वी हैव टू कंसिडर अकॉर्डिंगली. See, during the year 1, 18 employees leave, but this is the actual information, so we will not consider here. We will consider in the third year, okay, and second year, okay. So we have to consider this estimated information. See, the entity revised the estimate, यानी कि ये estimated information है. एम्प्लॉयज़ कितना छोड़ के जाएंगे ऐसे लग रहा है, 20% to 16%. सो विल कंसिडर दिस परसेंट, दैट इज़ मिनिमम परसेंट, सो 16%. ओके, तो हम लोग को क्या लग रहा है, 100% एम्प्लॉई में से 100% एम्प्लॉय में से 16% एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे, यानी कि बचेंगे कितने, 84. सो हम लोग इधर करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 84%. ओके, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपायर पीरियड इज़ 1 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड इज़ 3. ओके, so this is the calculation for year 1. accordingly we'll go for year 2. year 2 में भी वैसा ही है. see, 400 एम्प्लॉयज़ है. ओके, 400 एम्प्लॉयज़ है, लेकिन उसमें से कितना छोड़ के जाएंगे वो हम लोग को बोला है. सी, ड्यूरिंग द year 2 a further 20 employees leave. okay, but this is the actual data, we require estimated data. The entity revise the estimate of the total employees departure over the 3 years period, that is 16% to 13%. ओके, तो ये एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन है. सो मिनिमम कितना है, 13. सो हम लोग कंसिडर करेंगे 13%. ओके, सो इधर 400 है, इसका हम लोग को 13% चाहिए, मतलब 13% छोड़ के जाएंगे. सी, 100 में से अभी लग रहा है कि 13% छोड़ के जाएंगे, मतलब हमारे साथ कितने रहेंगे, 87%. ओके, सो हम लोग इधर करेंगे 87%. ओके, दिस इज़ द एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन. ओके, फर्स्ट ईयर में हम लोग ने पूरा एस्टिमेटेड लिया, सेकेंड में हम लोग को फर्स्ट का एक्चुअल, सेकेंड का और थर्ड का एस्टिमेटेड. सो सेकेंड और थर्ड का एस्टिमेटेड किया, अभी एक्चुअल कंसिडर करना है ना फर्स्ट का. सो फर्स्ट का एक्चुअल कितना है, सी एक्चुअल कितना छोड़ के गए, 18. सो हम लोग इधर कंसिडर करेंगे, माइनस करेंगे 18, क्योंकि उतना एम्प्लॉयज़ कम हो गया. सो दिस इज़ एक्चुअल फॉर ईयर 1 एंड दिस इज़ एस्टिमेटेड फॉर ईयर 2 एंड 3. बाकी जो भी पार्ट है वो सेम रहेगा. मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपायर पीरियड डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड. ओके, so this is the calculation for year 2. and now for year 3, which is very simple. see, year 3 एक्चुअल डेटा ही लेना है. सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ टोटल 400 थे, उसमें से ड्यूरिंग द ईयर 1 कितना एक्चुअली छोड़ के गए, दैट इज़ 18. सो माइनस करेंगे 18. उसके बाद ईयर 2 में कितना छोड़ के गए, एक्चुअली 20. सो माइनस करेंगे 20. ईयर 3 में कितना एक्चुअली छोड़ के गए, 14. सो माइनस करेंगे 14. सो वी आर गेटिंग 348. ओके, ये जो है पार्ट वो पूरा हम लोग ने किया है क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट में. ओके, सो 348 एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 100, मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू 30, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपायर पीरियड 3 एंड वेस्टिंग पीरियड इज 3. ओके, सो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर ईयर 3. नाउ जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर 1 के लिए 400 multiplied by 100 multiplied by 30 multiplied by 84% multiplied by 1 divided by 3. So we are getting 3,36,000. After that next one, so 400 multiplied by 87% minus 18 multiplied by 100 multiplied by 30 multiplied by 2 divided by 3. So it is 6,60,000. Okay. Next 348 multiplied by 100 multiplied by 30 multiplied by 3 divided by 3. So it is 1,44,000. 1,44,000. So here we are getting cumulative amounts. Now we have to record year wise amount. So year 1 का तो सेम आएगा 3,36,000. ओके, सो year 2 का हम लोग कैसे करेंगे, 2 minus 1, so 6,60,000 minus 3,36,000. so we are getting 3,24,000 for year 2. and now for year 3 that is ये अमाउंट, उसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे. so 1,40,000
44,000 minus 6,60,000, so we are getting 3,84,000. So cumulative amount यानी कि टोटल अमाउंट है 1,44,000. सो इसका टोटल लेके हम लोग चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं. सो 3,36,000 प्लस 3,24,000 प्लस 3,84,000, so we are getting 1,44,000. So we are getting same amount, that is total is correct. So here we have calculated this table. See, in the textbook they have not considered this 18, so that's why their amount is coming different, but we have gone through the logical way. So here we are getting these amounts. So we have to pass the journal entry for all these expenses, okay, year wise. So journal entries during 3 years vesting period. For year 1 we have to record the entry. The entry will remain same for all the 3 years, but amount will change. So entry is employee expenses account debit to I am writing in short, share based payment reserve account. Okay, so first year का amount कितना है? 3,36,000. 3,36,000 is the first year amount. Okay, after that same entry will for second year. So employee expenses account debit to share base payment reserve account. Amount is 3,24,000. After that last year entry, that is third year entry, employee expenses account debit to share base payment reserve account. So total, that is amount for third year is 3,84,000. So here we have passed the entry for all 3 years, that is during the vesting period. After that, when exercise means option is get exercised by the employees, at that time what will be the entry? So we'll pass the entry for that. See, they have told us that all the shares exercised by the employees at ₹50 only. Okay, so जो भी एक्सरसाइज किया है ऑप्शन एम्प्लॉयज़ ने वो 50 प्राइस पे किया है, मतलब एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 50 है. ओके, सो थर्ड ईयर में हमारे पास कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है? सी, जो थर्ड ईयर में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वही सिर्फ ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि वही हमारे साथ है अभी. ओके, सो 348 एम्प्लॉयज़ आर देयर. ईच एम्प्लॉय विल गेट 100 shares and exercise price is 50. So accordingly we have to pass the entries. So employees are exercising the option, it means company is getting the money. So bank account debit, कंपनी के पास पैसा आएगा क्योंकि एम्प्लॉयज़ लोग ने एक्सरसाइज किया है ना ऑप्शन. सो इधर बैंक अकाउंट डेबिट. सी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थर्ड ईयर में हमारे पास 348 है. ओके, मल्टीप्लाइड बाय हर एक एम्प्लॉय को 100 शेयर मिलेगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो भी एक्सरसाइज प्राइस है वो 50 है. सो मल्टीप्लाइड बाय 50 ना. सो हम लोग को अमाउंट मिला 17,40,000. 17,40,000 कैसे फाइंड आउट किया हम लोग ने? 348 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50. 348 आर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय 50 मीन्स व्हाट? एक्सरसाइज प्राइस. सो वी आर गेटिंग 17,40,000. आफ्टर दैट शेयर बेस पेमेंट रिजर्व. ओके, सो जो भी हम लोग ने 3 ईयर में प्रोविजन किया है उसको अभी डेबिट करके कैंसिल करना पड़ेगा. सी, हियर वी हैव क्रेडिटेड दिस शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट during 3 years, so we have to debit it so that it will get cancelled. So we'll take the total of this credit share based payment reserve account, 3,36,000 plus 3,24,000 plus 3,84,000, so total is 1,44,000. okay, sorry, 10,44,000. 10,44,000. okay, so we'll debit 10,44,000. ठीक है. So here
वी हैव डेबिटेड शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट. सो ये जो भी क्रेडिट किया था वो अभी कैंसिल हो जाएगा. ओके, आफ्टर दैट नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को चेक करना है कितना है. अकॉर्डिंगली हम लोग को इक्विटी शेयर कैपिटल का एंट्री करना पड़ेगा. सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. We all know that while passing entry for equity share capital we have to use only face value. So face value is given in the question, that is 10. So face value is 10. See, number of employees कितना है 348. ओके, हर एक एम्प्लॉय को कितना शेयर मिलेगा 100. ओके, मल्टीप्लाइड बाय जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितना है 10 है, तो कितना अमाउंट हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल का, दैट इज 3,48,000. ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना हो गया 3,48,000. ओके, तो अभी जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम. सिक्योरिटी प्रीमियम. ओके, नरेशन वगैरह जो भी है वो जनरली हम लोग जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है. बुक में दिया रहेगा तो उधर से ही देख लेना. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एंट्रीज अंडरस्टैंड करना चाहिए. ओके, सो टोटल डेबिट में कितना अमाउंट है 17,40,000 प्लस 10,44,000. उसमें से क्रेडिट का माइनस दैट इज़ 3,48,000. सो हम लोग का जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम है वो आया 24,36,000. ओके, so security premium amount is 24,36,000. okay, so here we have completed the journal entries, all the journal entries, that is during the vesting period also and at the time of option exercise also. Okay, so here we have completed the journal entries part also. So here we have completed illustration number 7. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.